are going live. मेरी आवाज क्लियर है ना? हम्म You can hear me? हाँ. We are live now. Good evening, everyone. Forum to Enjoy English Language and R.S. Mulle Dharampet Arts and Commerce College welcome you all to another great session from FEEL, that is Forum to Enjoy English Language. And this is a collaborative teaching learning activity especially arranged for students. We have already completed 2 units, and yesterday we started the 3rd unit. We have completed the first poem, Invictus, and today we are going to take the second poem, The Builders. And for this poem, we have another expert faculty from RTM Nagpur University, Dr. Usha Sakure. She is indeed a very pleasant and enthusiastic personality. And along with her teaching skills, she has amazing culinary skills too. Yes, if you want to enjoy any recipe, you can anytime land up at her residence and you can enjoy all the tasty recipes. And now let me introduce you to her academic achievements. Dr. Usha Sakure is an associate professor, head of the department English. She's a principal at Manohar Rao Kamri Mahavidyalaya with 30 years of teaching experience. She has participated and presented papers in 5 regional, 20 national, and 12 international seminars and has to her credit 18 research papers. Apart from this, she has also contributed 12 articles in national publications of repute. She is associated with various organizations and worked in different committees of Nagpur University and is in the interview board of Navodaya schools. She has completed MBA in Education Administration from Symbiosis, Pune. She is the ex-director of Dharampet Mahila Multi-State Cooperative Bank and Devyani International School. She holds the key post of secretary at Central India Institutes of Education and Cultural Development, a pioneer body imparting quality education in the field of rural education in Central India. She is in the advisory board of Green Heaven Group of Institutions offering B.Ed and management courses. She is the secretary of Center for Literary Interaction and Creativity and Shakespeare Society of Central India. She is the managing director, management of Devta Life Foundation. She is also the co-editor of Young Junction, monthly career magazine, and Click, journal Insight. She has received the prestigious Bharat Jyoti Award recently for her outstanding contribution in the field of education by Honorable ex-Governor of Karnataka, Shri Bhishma Narayan Singh in New Delhi. She recently received the prestigious Savitribai Phule Award from ex-Vice Chancellor, Amravati University, Honorable Dr. Kamal Singh, for her excellence in educational field and social upliftment, and is also the recipient of Vidarbha Bhushan Award. Yes, so indeed, we have an illustrious person with us, and no doubt we are proud to have her amidst us here today. And let us move on to our poem, The Builders. Over to Dr. Usha.
Shall I Yes, share my now- screen? Yes, now you can share. Is it visible? No, not yet. Not yet. But Yes. it is visible Yes. to me. Yes. Is it visible? Now Yeah. it is starting. Wait. Okay. Good evening, dear students, and thanks, Manju. At the outset, I'd like to take this opportunity to thank my dear friend Manju for giving me this opportunity to analyze this poem. I'd also like to congratulate you on doing this commendable job. I really appreciate it deeply. So, without wasting much time, I directly shift to the poem today. Lots of literary terms had already been discussed yesterday by my dear friend Dr. Jyoti Patil, for which I'm greatly obliged. So, dear friends, good evening all. Today we'll take this poem by H.W. Longfellow, The Builders. So in order to appreciate a poem, it is very important, first of all, to know about the poet itself. Whenever any question is being asked, you should always analyze the poet's experiences, the life of the poet before analyzing your poem. So let us take a brief introduction of H.W. Longfellow. H.W. Longfellow was born on 7th February 1802 in Portland, Maine, USA. Just a minute. आगे नहीं बढ़ रहे भाई. There's some problem, I think. Let me see. Stop share. Let me start it again. Is it visible? Manjushri, please let me know. Yes, it's visible. But it's not changing. Why? Let me see. Just a minute. Huh? Okay. Yes. Start from beginning. Okay. Yes. Yeah. So we are dealing with this poem, The Builders by H.W. Longfellow. And H.W. Longfellow was born on 7th February 1802 in Portland, Maine, USA. So basically he is an American poet, and his father was a lawyer and wanted his son to carry on his profession, as every parent wants that their son should or their daughter should carry on the same profession. But Henry H.W. Longfellow decided to become a poet, and just imagine, he published his first poem at the tender age of 13, entitled The Battle of Lowell's Pond. He was not only a poet, he was a great writer, educator, and he had a great command over many languages like Spanish, Italian, and French. So he used to travel a lot. So this is the picture of H.W. Longfellow that you can see. This is the house of H.W. Longfellow. I would like to tell you that in UK or US, whoever the great personalities are, the poets or writers, their houses are being preserved as a museum. So you can have an access to it, you can go, you can have an entry, you can have a look at the libraries, the bedroom, the living room, the kitchen, everything. And also you get an idea about the poem and the time, about the poet and the times that he lived in. You can also know about his experiences. And also all these experiences count a lot when you read his poems or his or her poem, whoever poet may be.
So H.W. Longfellow specifically wrote on individuality. Every poet has got his own experiences that he writes. For example, William Wordsworth writes on nature, so he's a nature poem. You must be aware of other poets like R.L. Stevenson, W.B. Yeats, John Keats, William Shakespeare. So in the same way, H.W. Longfellow also used to write on certain things. His specific area was individuality. है ना, वो individuality या व्यक्तित्व. Sorry, I forgot to speak in Hindi. So I'll be speaking in Hindi also so that everyone can understand. उनकी जो poems है वो बहुत कुछ individuality या व्यक्तित्व पर depend करती थी. बहुत कुछ वो he used to write on self-reliance, he used to write on philosophy. तो self-reliance या आत्मनिर्भरता पर भी वो बहुत कुछ लिखा करते थे. If you could see, his poems are mainly inspirational and it really touches the heart. कोई सी भी पोएम आपको अच्छी कब लगती है? जब वो आपके हार्ट को टच करती है, जब आपके हृदय को छू लेती है ना? तो his poems are basically he used to write like personality development. आजकल आप देखते हैं ना, बहुत सारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस होती है. तो सिमिलरली व्हेनेवर विलियम वर्ड्सवर्थ रोट, it was mostly about the personality development, changing your personality, how you can mold your personality, how you can create a new personality. He advocated the inner strength and potential of man. He felt that every man has got a potential which one or the other has to tap in. अपनी खूबियों को, अपनी इन बातों को, जो भी आपके अंदर जो क्षमताएं हैं, कैपेसिटी है, उसको बाहर निकालना बहुत ही जरूरी होते हैं. ये भी हम देख रहे हैं. देखो, ये उनके एक पिक्चर है जिसमें बौद्धिक कॉलेज में वेयर ही यूज्ड टू स्टडी. ही नॉट ओनली स्टडीड देयर, लेटर ऑन उन्होंने वहां पर पढ़ाने का भी काम किया. तो ये उनका अल्मा मेटर है, जहां पर वो पढ़ते भी थे और लेटर ऑन ही taught there also. Later on वो इतने ज्यादा इंटेलेक्चुअल थे कि उनका चयन हो गया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. आई थिंक बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स दे वुड बी नोइंग कि H.W. लॉन्गफेलो जो है वो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे. एंड आप ये भी देखें कि उनकी जो पोएम्स है, अगर आप इस पोएट के बारे में जानना चाहेंगे तो बहुत ही कमांडिंग फिगर थे. 19th सेंचुरी अमेरिका में उनका बहुत बड़ा नाम था और ही वाज डीप रूटेड इन अमेरिकन लाइफ एंड हिस्ट्री. जो उनके इमेजिनेशन को, वो उनकी कल्पनाओं को, बहुत सारी वेरिड थीम्स, और इस तरह से वो इतने एम्बिशियस हो गए कि उन्होंने बहुत जल्दी ही सक्सेस या बहुत जल्दी ही अपनी मंजिल को प्राप्त किया. You can understand he had written not less than 325 poems. Just imagine, I am also a poet, लेकिन 25-30 के ऊपर शायद मेरी poems नहीं गई होंगी. But H.W. Longfellow had 325 poems in his kitty. Just imagine, उन्होंने इतना ही नहीं, बहुत सारे उन्होंने translation works भी किए हैं जो बहुत ही commendable है. Now, हर पोएट जो है वो कोई ना कोई से एक मूवमेंट को बिलोंग करता है ना. आज मैं बहुत ज्यादा आपको हाई साउंडिंग वर्ड्स या बहुत ऐसी बहुत लिटरेरी टर्म्स से मैं आपको आपका नाता नहीं करूंगी या आपको वाकिफ नहीं करवाना चाहूंगी, बिकॉज हमारी जो पोएम है इट इज ऑलरेडी वेरी बिग. इट हैज गॉट 9 स्टैंजास. तो 9 स्टैंजास को एलाबोरेट करते करते ही शायद बहुत टाइम हो जाएगा. दैट इज व्हाई आई विल कीप ऑल द लिटरेरी टर्म्स अवे. बट in order to understand a poet, it is very essential that you should know about the movement that he was associated with. So he was associated with transcendentalist movement. See, it is very difficult to pronounce, but ये चीज क्या है, ये होता क्या है, वर्ड किससे बना हुआ है? ट्रांसेंड, है ना. ट्रांसेंड का मतलब क्या होता है? ऊंचा उठना, to rise above. Now he belongs to this group, and इसका leader कौन थे? Who was the leader of transcendentalist movement? It was R.W. Emerson. और उनके साथ में Walt Whitman, Nathaniel Hawthorne, ऐसा बहुत सारे जो अलग राइटर्स थे, पोएट्स थे, वो भी इनके साथ एसोसिएटेड होते थे. और ये है क्या, ये होती क्या, ये चीज क्या है? तो इट हैज गॉट अ वेरी सिंपल आइडिया. भले ये आइडिया बहुत सिंपल है, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स भी, कॉम्प्लेक्सिटी की ओर भी जाती है. सो ये कहते हैं कि ये जो आइडिया है इट गोज बियॉन्ड जाना, मीन तो उसके ऊपर उठकर
उठना, ऊपर उठना, अपने इमेजिनेशन को और ऊपर उठाना in order to understand the way of life's relationship, अपनी लाइफ की जो रिलेशनशिप है, जीवन के जो संबंध हैं, उनको जानने के लिए आपको अपने इस सांसारिक भौतिक मटेरियल वर्ल्ड से कुछ तो ऊंचा उठना पड़ेगा, आपको और कुछ आगे देखना पड़ेगा। वो उनका मानना ये रहता था कि हर ह्यूमन बीइंग, जो लोग हैं, जो ह्यूमन रेस है, वो सब सिंपल है, सभी बहुत अच्छे हैं, एवरीवन इज गुड, बट एवरीवन हैज गॉट पोटेंशियल इनटू देम। सबके अंदर कोई ना कोई सी खूबी होती है। और अगर हमारी लाइफ जो है, इट इज सो कॉम्प्लिकेटेड, इट पोजेस अस सो मेनी क्वेश्चंस, इट पोजेस अस मेनी परप्लेक्सिंग क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं आंसर करने के लिए। ट्रांसेंडेंटलिस्ट मूवमेंट के जो लोग हैं, उनका ये मानना रहता था कि लाइफ में कितने भी डिफिकल्ट और बड़े क्वेश्चंस हमारे सामने खड़े हो जाएं, उनका कहीं ना कहीं आंसर मिलता ही है, उसका कहीं ना कहीं सोल्यूशन जरूर मिलता है। इफ यू वांट टू नो अबाउट द सोल्यूशन, यू शुड गो इनटू नेचर, है ना, नेचर में जाओ, निसर्ग में जाओ, आपको आंसर मिलेगा। किसी वर्क ऑफ आर्ट में जाओ, कोई सी कलाकृति में जाओ, यू विल गेट द आंसर। सो आपके जो लाइफ के क्वेश्चंस है, दे आर गोइंग टू बी सॉल्व्ड, ऑल दिस perplexing questions will be solved by nature itself, and the answer lies within you, आपके अंदर ही है। आपने क्वेश्चन पूछा, आप 10 लोगों के पास चले जाए, उसका आंसर तो आपके पास ही है, क्योंकि उस सिचुएशन से डील करने की क्षमता आपके अंदर ही होनी चाहिए। दैट इज व्हाई ही सेज यू शुड गो बियॉन्ड, है ना। तो आपको कहाँ जाना है? टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक दिशा की ओर जाना है, और अपने आप को ऊंचा उठाना है। in order to, you have to move yourself to a higher level, to an infinite spiritual world. He says we can reach God directly by raising our minds to that intellectual level where we do not need any agent. भगवान से मिलने के लिए, भगवान के पास जाने के लिए, पास जाने का मतलब मैं ये नहीं कर रही कि आप कोई एक्सपायर हो जाए और भगवान को मिल ले। कहने का मतलब है कि भगवान को जानना, भगवान के पास जाना, ऐसे डीड्स करके उनके पास तक पहुंचना, ये आपके हाथ पे है, ये कैपेसिटी आपके अंदर है। अगर ये आपने अपना इंटेलेक्चुअल लेवल इस तरह से ऊंचा उठाया, सो दैट यू डोंट नीड एनी एजेंट, किसी एजेंट की जरूरत नहीं है, आप साक्षात भगवान से मुलाकात कर सकते हैं by doing these such massive deeds. So let us go to the poem The Builders by H.W. Longfellow. तो ये सारी चीजों से आप शायद समझ गए होंगे। इसमें मैंने आपको ये बताया कि लॉन्गफेलो कहाँ के थे, अमेरिकन पोएट थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था और किस तरह की उनकी एक्सपीरियंसेस थे, कौन से मूवमेंट में वो बिलोंग करते थे। ये सारी बातें मैंने क्यों बताई है? It is because in order to understand the poetry, in order to understand the poem, you have to understand the man behind the poems, है ना। He has a collection of poetry. आपको कल बताया गया था what is the difference between poem and what is the difference between poetry. Poetry is a collection of poems and poem एक single unit है. So in order to understand his poetry, it is very essential that you should know about him. So अगर हम फर्स्ट ग्लांस में या पहली बार इस पोएम को पढ़े तो उतना कुछ समझ में नहीं आता। और ये इसी पोएम के लिए नहीं, ये सारी पोएम्स के लिए लागू होती है कि whenever you want to understand a poem, you should read it first time, second time, third time. Only then you get the essence of it. Only then you discover its true meaning or the true essence. So the essence of this poem is that we are the builders of our own fate. And this poem is in the form of quatrains, है ना। अभी एक नया टेक्निकल टर्म हम पढ़ रहे हैं, that is quatrains. What is quatrain? मतलब इनकी जो पोएम है, इसमें हर स्टेंजा जो है वो 4 लाइनों में बटा हुआ है, 4 लाइनों में डिवाइड किया गया है। और it has got a rhyming pattern. देखो इसमें rhyming pattern कैसा है। फॉर एग्जाम्पल पहली लाइन ए फेट, दूसरी लाइन टाइम, ये आखिरी वर्ड है ना, आखिरी वर्ड जो राइमिंग वर्ड है उसे मैं ले रही हूँ। तो फेट, टाइम, ग्रेट, राइम। तो फर्स्ट वाली लाइन फेट, सेकेंड नहीं राइम हो कर रही है, थर्ड लाइन राइम कर रही है ग्रेट, देन सेकेंड लाइन टाइम राइम कर रही है, सेकेंड लाइन, एंड फोर्थ लाइन राइम कर रही है बी। सो दिस इज कॉल्ड सीक्वेंस
A, B, A, B. This is the pattern. And the same structure, this pattern is structured and consistent in such a way that throughout the poem, throughout the nine stanza, you will find the same rhyming pattern. One more thing that I would like to say is, this is the poem, The Builder. What is The Builder? The Builder is a metaphor. Again, one more technical term that you're going to understand. So you know the difference between simile and metaphor. I hope you understand the meaning of simile and metaphor. So for example, if I say, Kavita is as innocent as an angel. So what is there? There is a comparison. Kavita is being compared to an angel. And if I say, Kavita is an angel. See the difference between the two sentences. In the first sentence, you say, Kavita is as innocent as an angel. There is a comparison. Kavita is compared as an angel, compared to an angel. But in the second line, they directly say, Kavita is an angel. So there is no like, there is no comparison. You have to understand Kavita is an angel. That's it. It is a metaphor. Kavita and angel are similar. There is no difference. It is one and the same thing. And this is metaphor. It is an implied simile. And there is no difference between two things that are compared. The builder is a metaphor in the sense that it implies that we human beings are the builders of our own destiny. हाँ, तो यहाँ पर ये metaphor कैसे हो गई? तो लॉन्गफेलो ने ये the builders बनाई है और उसका metaphor अपनी life से ही किया है. So we are the builders. कैसे कहते हैं? कैसे ये metaphor है? कि we are the builders of our own life. And the poet gives us a clear picture of our life. Throughout the poem, he speaks on maintaining a constructive relationship with history. One should focus on making a strong foundation to reach the ultimate pinnacle or turrets of life. तो पूरे पोएम का सार यही है कि वो एक आपको क्लियर पिक्चर दे रहे हैं कि थ्रू द पोएम वो यही बोल रहे हैं कि किस तरह से हमें अपने आपसी संबंध बनाए रखना है, किससे, हिस्ट्री से, इतिहास से, और किस तरह से एक व्यक्ति अपना फाउंडेशन कैसे स्ट्रॉन्ग बनाए जिससे कि वो एक ऊंचे मुकाम, टरेट्स मींस ऊंचे मुकाम तक वो पहुंच जाए. So let us come to the first stanza, and the first stanza deals with this. Let us go through the poem. All are architects of fate, working in these walls of time, some with massive deeds and great, some with ornaments of right. Huh? So see, beautiful lines, see what he has said. अच्छा, ये पोएम को डील करते हुए आपको ये भी याद रखना है कि आप एक इमेजिन करें, बिकॉज यू हैव टू ट्रांसेंड योरसेल्फ, यू हैव टू गो बियॉन्ड योर इमेजिनेशन. आपको साथ ही साथ क्या देखना है? एक उभरती हुई बिल्डिंग की कल्पना करना है. एक उभरती हुई बिल्डिंग की छवि आपके सामने आपको रखनी पड़ेगी, तभी आप इस पोएम को अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि आपकी लाइफ, आपकी पर्सनालिटी, आपका कैरेक्टर सेम उस बिल्डिंग की तरह है. जिस तरह से वो बिल्डिंग राइज हो रही है, उसी तरह से आपकी पर्सनालिटी और कैरेक्टर भी राइज हो रहा है. सो वी, व्हाट डज ही से? वी ऑल आर द आर्किटेक्ट्स ऑफ फेट. वी आर द आर्किटेक्ट्स ऑफ आवर ओन लाइफ. आर्किटेक्ट्स कौन होते हैं? रचनाकार. तो उधर छवि आप भूलिए मत. उस छवि में क्या हो रहा है? एक इमारत का निर्माण होने वाला है, एक इमारत की रचना होने वाली है, जहां पर कुछ लोग रहेंगे जो उस काम को करने वाले हैं. सो we are also constructing our own life. All people, no matter who they are rich or poor, small or big, important, unimportant, everyone is constructing their own life. Everyone has to construct their own life. Just as the उस इमारत की तरफ जाओ, कौन कौन है वहां पर मैसन है, कारपेंटर है, बिल्डर है, आर्किटेक्ट है, मजदूर भी है, प्लम्बर भी है, कारपेंटर भी है. सो मेनी पीपल आर देयर. वो लोग क्या कर रहे हैं? एक इमारत को उभार रहे हैं, एक इमारत को ऊपर ला रहे हैं, बना रहे हैं. और किसी का वर्क वैल्यूलेस है क्या? किसी का वर्क कम है क्या? नहीं, सभी का वर्क इंपॉर्टेंट है. दैट इज व्हाट ही सेज. वर्किंग इन दीज वॉल्स ऑफ टाइम, some with massive dividends great and some with ornaments of rhyme. किसी का काम बहुत बड़ा है, कोई बहुत बड़ा सा काम कर रहा है, जैसे कोई बिल्डर है, वो कॉन्ट्रैक्टर है, उसके पीछे थोड़ी ज्यादा जिम्मेदारी है.
और साथ ही में कौन है, जो कुछ मजदूर है, प्लम्बर है, कारपेंटर है, सब के सब दे आर ऑल आर्किटेक्ट्स ऑफ फेट। यहाँ पर फेट और कुछ नहीं है, हमारी फेट मीन्स किस्मत होता है, यहाँ पर फेट मीन्स लाइफ है, कि हम सब अपने रचनाकार स्वयं हैं, हम अपनी जिंदगी खुद संवारने वाले हैं, हमें अपनी जिंदगी खुद ही बनानी है। और सारे समय काम करते करते एक एक मजदूर, एक एक व्यक्ति काम करते करते जिस तरह से एक बिल्डिंग को उभार रहा है, उसी तरह से हर व्यक्ति, हर इंडिविजुअल अपनी जिंदगी रूपी बिल्डिंग को उभार रहा है, अपनी लाइफ को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर रहा है, और उस तरह से ये बिल्डिंग जो है वो आगे बढ़ती चली जा रही है। जिस तरह से अपनी लाइफ को हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसी तरह से ये स्पीकर जो है वो ये कह रहे हैं कि हम सब मिलकर जो भी इस दुनिया में रह रहा है वो सब कंट्रीब्यूट कर रहा है, सभी के सब इस काम को करने में लगे हुए हैं। टुगेदर वी आर गोइंग टू बिल्ड ह्यूमैनिटी, टुगेदर वी आर गोइंग टू मेक द हिस्ट्री। साथ ही साथ हम मिलकर ये इतिहास की रचना कर रहे हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि फर्स्ट स्टैंजा में सारी चीजें जो है, कोई बड़ी, मैसिव मीन्स बहुत बड़ी, और बड़ा काम करने वाला भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, और छोटा काम करने वाला भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। Second stanza, he says, nothing useless is or low, each thing in its place is best, and what seems but idle show strengthens and supports the rest. I hope you students are understanding what I'm telling, because एक direct contact हम लोगों के बीच में नहीं है। मेरी तो आदत है कि जब मैं क्लास में पढ़ाती हूँ तो बच्चों के आंखों में देख कर पढ़ाती हूँ, पर because ये सारी चीजें ऑनलाइन है, so I don't know whether you are understanding or not. So please they are put it. understanding and they are writing. Okay. Yes, ma'am. Okay. Yes, they are enjoying. Okay, okay, fine. Thank you so much for this. In the second stanza, we say nothing is useless, nothing is low. And this construction of life, nothing can be said useless. Nothing is high, nothing is low. Each thing has its own importance. Each thing is best placed. See, हर व्यक्ति, इवन एज अ स्टूडेंट, यू ऑल कैन इमेजिन कि आप बच्चे हैं, आप स्टूडेंट हैं, हर कोई अपने आप में इम्पोर्टेंट है। एक घर में भी अगर एक दो सिबलिंग्स रहते हैं तो वो क्या एक जैसे होते हैं? एवरीवन इज डिफरेंट, एवरीवन हैज हिज ओन प्लेस। फॉर एग्जांपल, अगर आप उसी इमारत की ओर देख रहे हैं तो आपको दिखेंगे वहां पर क्या क्या बन रहा है। वहां पर विंडोज बन रहे हैं, पिलर्स बन रहे हैं, वहां पर डोर की स्थापना की जा रही है, डोर लगाए जा रहे हैं, उसमें लैचेस है, लाइट्स है, टैब्स है, अनइमेजिनेबल थिंग्स, है ना। तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं कि कौन कौन सी चीज आपको दिखाई दे रही है उस इमारत में जो बन रही होगी, या वो डाल रहे होंगे, सो दैट लेटर ऑन आई सी कि आपने कौन कौन सी चीजों को उसमें डाला है। ये सारी चीजें कैसी है? इंडिस्पेंसिबल। ये अगर डोर में एक लैच बना हुआ है, एक कड़ी बनी हुई है, तो क्या वो इंपॉर्टेंट नहीं है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। टैप जो है वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं? पानी के सिवा आपका कुछ काम चल ही नहीं सकता। तो सारी चीजें, इट वन कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय अनदर, है ना। एक चीज जो है वो दूसरे से रिप्लेस नहीं हो सकती, उसका जो इंपॉर्टेंस है वो वही रहेगा। एक विंडो जो है वो वेंटिलेशन देती है, क्या वो डोर का काम कर सकता है? बिल्कुल नहीं। डोर जो है वो विंडो का काम कर सकता है? नहीं। अगर डोर की जगह भी विंडो को ही लगा दें तो आपके घर में चोरी हो जाएगी। अगर सिर्फ आपके घर में अच्छा वेंटिलेशन होगा, लेकिन ना आप उस रूम के अंदर आ सकते हैं न जा सकते हैं। तो इसलिए कहने का क्या मतलब है? ईच थिंग इन इट्स प्लेस इज बेस्ट। हर व्यक्ति, हर पर्सन इस दुनिया में जो आया हुआ है वो उसकी एक निहित जगह है, और उस जगह पर वो बहुत ही, भगवान ने उसे बहुत ही अच्छी जगह पर बिठाया हुआ है, क्योंकि उसका काम वहां पर है, उसका काम वहीं पर उसका काम रहेगा। एंड व्हाट सीम्स बट आइडल शो स्ट्रेंथन्स एंड सपोर्ट्स द रेस्ट। अगर आप ये सोचें कि मैं ही बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, बाकी लोग इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ऐसा नहीं चलेगा। हर व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। उस बिल्डिंग को देखो तो उस बिल्डिंग की ओर अगर आपकी नजर जाए तो सारी चीजें वहां पर इंपॉर्टेंट रहेगी, कोई छोटी नहीं है, कोई बड़ी नहीं है।
नथिंग कैन बी यूजलेस, और कुछ भी चीज यूजलेस और लो नहीं हो सकती। हमारी ह्यूमन लाइफ, द लैडर ऑफ ह्यूमन लाइफ, एवरीवन हैज इट्स ओन प्लेस। हमारी ह्यूमन लाइफ का जो लैडर, लैडर मींस ये सीढ़ी, इस सीढ़ी में कोई ऊपर खड़ा है, कोई नीचे खड़ा है, लेकिन सब अपना अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। जिस तरह से आपकी फॉर एग्जाम्पल में अगर मैं दूं, आपका उदाहरण दूं कि आपकी हाथ की उंगलियां, सभी उंगलियां अलग अलग डायमेंशन में, कोई बड़ी है कोई छोटी है, लेकिन क्या अगर मिलकर जब वो काम करती है तो क्या वो काम होता नहीं है? बहुत बखूबी वो काम होता है। उसी तरह से सारी जो फिंगर्स जिस तरह से मिलते हैं तो एक पर्पस को, ये एक ध्येय को देते हैं, पर्पसफुल बनता है, मीनिंगफुल बनता है, और वो एक ग्रेट ड्यूटी को परफॉर्म करते हैं। उसी तरह से एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ यूनिक क्रिएशन ऑफ गॉड, है ना। देखो फिर से स्पिरिचुअलिटी आ गई। एवरी वन इज अ यूनिक क्रिएशन ऑफ गॉड, nobody is similar and this difference gives him a different personality. हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति भिन्न है, हर व्यक्ति डिफरेंट है, और इसीलिए उसको उसकी पर्सनालिटी भी अलग है। हर कोई एक जैसा नहीं हो सकता। अगर सारे लोग, पूरी इस दुनिया के लोग एक जैसा रहेंगे तो कुछ मजा भी नहीं आएगी ना। कुछ लोग बहुत हंसी वाले होते हैं, कुछ मजाकिया होते हैं, कुछ लोग बहुत ही सीरियस होते हैं, है ना, कुछ लोग बहुत ह्यूमर वाले होते हैं। तो ये दुनिया जो है हर तरह के लोगों से बनी हुई है। तो उसी तरह से वो ये कहते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी एक जगह है और अपना उसका वैल्यू है, उसका इंपॉर्टेंस है। अगर आप कंपेयर करते हैं एक स्वॉर्ड है, एक नीडल, अगर एक स्वॉर्ड है, स्वॉर्ड मींस तलवार, तलवार है, और एक छोटी सी नीडल है, नीडल तो उसका साइज बहुत ही छोटा है, इट इज वेरी स्मॉल, बट अगर देखा जाए तो आपको समझ में आएगा कि उसका काम कितना बड़ा है। अगर आपकी शर्ट या आपका ड्रेस अगर फट गया है तो क्या आप उसको स्वॉर्ड से या तलवार से सी सकते हैं? भले वो नीडल छोटी है लेकिन उसका वही काम है। सो इट इज प्लेस्ड एट इट्स बेस्ट। व्हाट अपीयर्स टू बी आइडल और अनइम्पोर्टेंट हैज अ स्ट्रॉन्ग वर्ड। वो नीडल भले छोटी और अनइम्पोर्टेंट दिख रही है, किसके मुकाबले? उस स्वॉर्ड या तलवार के मुकाबले, लेकिन वो एक बहुत बड़ा इफेक्ट, एक बहुत बड़ा चेंज लाने की क्षमता रखती है। इसी तरह से हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई सा टैलेंट है, कोई ना कोई सा पोटेंशियल है, कोई ना कोई सी कैपेसिटी है, जिसको यूटिलाइज करके, जिसको अपनी दुनिया में लाकर, लोगों को दिखाकर, कर वो इन सारी चीजों को सपोर्ट करेगा, और बाकी चीजों को सपोर्ट करने के साथ ही साथ इट विल गेट स्ट्रेंथन। दैट मीन्स वो पूरी तरह से एक बड़ा स्ट्रक्चर धीरे धीरे जो है वो बनते जाएगा। तो कोई भी, कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में यूजलेस नहीं है, कोई भी लो नहीं है, कोई भी बड़ा नहीं है, कोई भी छोटा नहीं है, कोई सा भी काम बड़ा नहीं है, कोई सा भी डीड्स या वर्क या एफर्ट छोटा या बड़ा नहीं होता। इन सबको मिलाकर ही हम एक मानवता का निर्माण कर सकते हैं। इन सबको मिलाकर ही हम एक हिस्ट्री या इतिहास का निर्माण कर पाएंगे। So now we come to the third stanza. I hope you understand. सेकेंड स्टैंजा आपको समझ में आ गया, ऐसा मैं सोच रही हूँ, ऐसा I could understand, I could see that you are understanding this. So now we are coming to the third stanza. See, this is a very beautiful stanza. बहुत ही सुंदर लाइन्स हैं. Each line has got its own significance. देखिए आप इसमें क्या कह रहे हैं. For the structure that we raise, हाँ भूलो मत, आपके साइड में एक इमारत बन रही है जिसको आप देख रहे हैं, है ना. आप ये पोएम जरूर पढ़ रहे हैं, लेकिन साइड में आपको वो छवि दिख रही है कि ये इमारत बन रही है. कैसी है इमारत? फॉर द स्ट्रक्चर दैट वी रेज, टाइम इज विथ मटेरियल फिल्ड. Our todays and yesterdays are the blocks with which we build. तो धीरे धीरे आपकी जो बिल्डिंग है, वो जो छवि है, वो बनती जा रही है. उसमें क्या चीज का यूज हो रहा है? टाइम इज द मटेरियल विथ विच वी आर बिल्डिंग आवर लाइफ. एक तरफ तो आपकी लाइफ है और दूसरी तरफ वो इमारत बन रही है. तो आपको देखना पड़ेगा कि आप अपनी लाइफ में क्या क्या चीजें डाल रहे हैं. सबसे पहले देखिए कि इमारत में क्या क्या कौन कौन सी चीजें डल रही है. उसमें सैंड डल रहा है, सीमेंट डल रहा है, स्टील डल रहा है, आयरन डल रहा है, वुड डल रहा है, वाटर है, सैंड है. सारी चीजों के साथ ही आप ये सारी मटेरियल को, इन सारी वस्तुओं को जब आप डाल रहे हैं तो एक स्ट्रक्चर उभर कर आ रहा है, एक इमारत उभर कर आ रही है. उसी तरह से कुछ मटेरियल्स लाइक, जिस तरह से हम कहते हैं कि बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज
आपके मटेरियल्स क्या होने चाहिए, आप अपना क्या बना रहे हैं, क्या आप इमारत बना रहे हैं, नहीं, आप अपनी पर्सनालिटी बना रहे हैं, आप अपनी लाइफ बना रहे हैं, आप अपना जीवन बना रहे हैं, है ना। तो इसके लिए आपको क्या जरूरत चाहिए, आपको सीमेंट और सैंड और रेती की आवश्यकता है क्या, नहीं, आपको लगेगा बहुत सारा हार्ड वर्क। ट्राई टू अंडरस्टैंड, और भी बहुत सारी क्वालिटीज है जो आपको याद आए तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके गुड क्वालिटीज है, वैल्यूज है, जो आपने अपनी लाइफ में फिल करनी चाहिए। तो जैसा हार्ड वर्क है, परसिवरेंस है ना, आपके परसिवरेंस भी होनी चाहिए, आप में कमिटमेंट होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, कंपैशन होना चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए, दया की भावना होनी चाहिए, है ना। बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। ये सारी चीजें, इन सारों का मिश्रण जब आप अपनी लाइफ में डालेंगे तो एक बहुत बड़ी, बहुत सुंदर सी पर्सनालिटी उभर कर आएगी, एक बहुत सुंदर सा कैरेक्टर डेवलप होगा। सो दिस वे टुगेदर वी आर बिल्डिंग अवर लाइफ, टुगेदर वी आर बिल्डिंग अ कैरेक्टर। वाह, अब उधर इमारत की तरफ देखो, वन ब्लॉक दी अदर ब्लॉक, एक के ऊपर एक सारे ब्लॉक्स डलते जा रहे हैं और वो इमारत आगे ऊपर बढ़ती जा रही है। उसी तरह से हमारी जो लाइफ है, हमारा जो जीवन है, वो भी इन छोटी छोटी चीजें जैसे कंपैशन है, इंटीग्रिटी है, ये सारी चीजों से, डिसिप्लिन है, इन सारी चीजों को जब हम अपनी लाइफ में इनका समावेश करते जाएंगे, if we are including all these things, all these virtues, all these qualities in our life, we would be able to build a strong character. And he also says कि whatever we are today, सबसे important बात है, you students, ये शायद H.W. लॉन्गफेलो को पता ही था कि भले वो कितने सेंचुरीज की बात हो गई है, लेकिन ये पोएम आज भी रेलेवेंट इस वे में है कि बच्चों ये याद रखो कि आज आपका जो आज है वो कल, दैट मीन्स यस्टरडे पर निर्भर है, और आपका जो प्रेजेंट है वो आपका जो फ्यूचर है वो आपके प्रेजेंट पर निर्भर है। कहने का मतलब है कि कोई सी भी क्वालिटीज एक ही दिन में बन जाएगी क्या, आप वहां पर आप उस इमारत को भी देख रहे हैं ना कि क्या वो एक ही दिन में बन जा रही है, एक दिन में धीरे धीरे उसमें चीजें डाली जा रही हैं और उसे खड़ा किया जा रहा है। सिमिलरली उसी तरह से आपकी लाइफ में भी छोटी छोटी चीजों का समावेश हो रहा है। कोई सी भी चीज धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ती हुई जाएगी। आपका जो यस्टरडे है वही आपके आज में काम आएगा, आपका आज जो आपने काम किया है वही आपका फ्यूचर बनाएगा। ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये चीजें हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। आपके हाथ में कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि जिस दिन आपने डिसाइड किया कि आज मैंने सोचा है कि आज मैं डिसिप्लिन हो जाऊंगा, आज मैं एकदम सब बिल्कुल अच्छा बच्चा बन जाऊंगा, सारे वर्च्यूज में अपने अंदर डाल दूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड ऑन इट। आपको धीरे धीरे अपनी इस बिल्डिंग को, अपनी इस इमारत को ऊपर उठाना है। So this is the next stanza, stanza 4, which this stanza, truly shape and fashion these, leave no yawning gaps between, think not because no man sees, such things will remain unseen. Oh my God, such beautiful line. Truly shape and fashion these, है ना। तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी इमारत बना रहे हैं। कौन सी इमारत, आपकी पर्सनालिटी को बना रहे हैं। So this stanza particularly describes the process of building and crafting the future. फैशन का मतलब यहाँ पर जो आप फैशनेबल थिंग्स को या एसेसरीज को यूज करते हैं वो नहीं, यहाँ पर फैशन का मतलब है क्रिएशन, टू मेक, है ना। तो आप अपने फ्यूचर को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं उसके बारे में उन्होंने बताया कि किस तरह से आप अपनी लाइफ का निर्माण कर रहे हैं, किस तरह से आप उसकी रचना कर रहे हैं, किस तरह से आप उसमें आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक और बहुत सारे वर्च्यूज को डालकर आप उसको एक अच्छा सा शेप दे रहे हैं, एक उसमें एक डिजाइन दे रहे हैं, हाँ, ताकि आप अपनी पर्सनालिटी को बना सके। One has to construct, one has to evolve, one has to shape, one has to fashion it in such a way so that it becomes perfect, है ना। कोई सी भी चीज में परफेक्शन बहुत जरूरी है। जब आप बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे तभी आप उस परफेक्शन को अचीव कर पाएंगे। He says, leave no yawning gaps between. See this picture. इस पिक्चर में आपको दिखाई पड़ रहा है कि एक इंसान, एक व्यक्ति बहुत ही सिंसियरली, ऑनेस्टली अपने काम को कर रहा है। देखो करते करते कितना ऊंचा चला आया है, और वो क्या कर रहा है, ही इज फिलिंग अप ऑल द गैप्स, है ना। देखो आपको ऊपर में बहुत सारी गैप्स दिखाई पड़ रही है, इन गैप्स को वो भर रहा है। कहने का मतलब है आपको अपनी लाइफ में किसी तरह के गैप्स नहीं रखने हैं। अगर
जिस तरह से इस बिल्डिंग में वो गैप्स अगर आपको दिख रही हैं, अगर ये गैप्स भरी नहीं गई, अगर इन गैप्स को भरा नहीं जाएगा, तो ये बिल्डिंग जो है वो सशक्त नहीं बन पाएगी। उसी तरह से आप अपनी लाइफ में किसी तरह के कोई गैप्स, कोई लेक्यूनास, कोई शॉर्टकमिंग्स, कोई बुरे काम, कोई इम्परफेक्शन, कोई हिंड्रेंसेस, कोई शॉर्टकमिंग्स, कोई रुकावटें, ये सारी कोई ऑब्स्टिकल्स, ये सारी चीजों को आप हटाते चले जाइए। ये जो गैप्स है, ये जो बुरी चीजें, गैप्स मतलब कुछ नहीं, बुरी चीजें, ऐसी चीजें जो आपके लाइफ को आगे ना बढ़ाकर पीछे खींचती है, ऐसी चीजों का आप तिरस्कार करिए और इन गैप्स को भरने की कोशिश करिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर नॉट डिसिप्लिन, ट्राई टू बिकम डिसिप्लिन। ये आपकी गैप भरने की एक प्रक्रिया होगी, एक प्रोसेस होगी, सो दैट यू कुड इवॉल्व, सो दैट आपकी लाइफ स्मूथ हो सके। वन शुड थिंक दैट नो वन, अच्छा ये करते हुए, ये इंसान को देखिए आप, यह काम कर रहा है, वो अपने हिसाब से कर रहा है, उसको ये नहीं पता कि कौन देख रहा है उसको, उसके सामने आपको कोई कॉन्ट्रैक्टर दिख रहा है क्या, कोई सुपरवाइजर दिख रहा है, कोई बिल्डर दिख रहा है? नो वन इज देयर। वेरी एफिशिएंटली, वेरी सिंसियरली, वो ईमानदारी से वो अपना काम करता चला जा रहा है। सो उसी तरह आपको भी अपने काम, अपने वैल्यूज, अपने बिलीव्स को करते चले जाना है, चाहे कोई आपको देखे या ना देखे। जब मम्मी पापा देख रहे हैं, जब आपके पेरेंट्स देख रहे हैं, तब आप किताब लेकर बैठ जाओ, पढ़ाई करो। लेकिन अगर उनका ध्यान नहीं है, अगर आप पता चल रहा है कि वो लोग नहीं है, तो फिर आप कोई मूवी देख रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, आप अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे ऐसे काम आपको नहीं करना है। दीज आर ऑल विल बिकम गैप्स इन योर लाइफ। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर बीइंग ऑब्जर्व्ड। कहीं ना कहीं देखो, फिर से ट्रांसेंड, हर स्टैंजा में आपको अपने इंटेलेक्चुअल लेवल को ट्रांसेंड करना है, बियॉन्ड दिखना है। सिर्फ उस स्टैंजा की जो 4 लाइंस है, सिर्फ उसको देखकर समझ लिए और यही चीज है, सिर्फ इतना ही बताना चाह रहा है, ऐसा नहीं। आपकी इमेजिन, लेट गो योर इमेजिनेशन वाइल्ड, वाइल्ड चले जाने दो। जितना कुछ आप सोच सकते हो उसको सोचने दो, आपके माइंड को रेज करो, ऊपर उठो, तभी शायद आप अपने एक अच्छी इमारत की कंस्ट्रक्शन कर पाओगे। तो यू हैव टू यूज ऑल योर वैल्यूज, है ना, यू हैव टू कैरी आउट ऑन योर ड्यूटीज, जो आप ईमानदारी से, परफेक्शन से आप अपने एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को बिल्ड कर पाएंगे। सो इन सच अ वे यू हैव टू कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग, एंड इन सच अ वे यू हैव टू कंस्ट्रक्ट योर लाइफ, इन सच अ वे यू हैव टू डेवलप योर कैरेक्टर, कि सभी लोग देखते रह जाएं, बड़ी ईमानदारी से, बड़ी एफिशिएंटली, बहुत सारी वैल्यूज आपने अपनी जिंदगी में एक के बाद एक करते हुए डालें। आपको ये भूलना नहीं है कि गॉड इज एवरीवेयर। अगर आपके पेरेंट्स की आपके ऊपर निगाह नहीं है, तो किसकी निगाह है? गॉड की है। गॉड आपको देख रहे हैं, भगवान आपको देख रहे हैं, और नथिंग इज अनअब्जॉर्ब्ड और अननोटिस्ड। भगवान की नजरों से कोई भी चीज चूक नहीं सकती। आपने अगर कुछ गलत काम किया है, तो फटाक से उनको समझ में आ जाता है। सो ये जो भी आप काम करें, उस समय आप इस चीज को ध्यान रखें, that you are under the observant eyes of God, because God is everywhere. So now coming to the next stanza, this is the 5th stanza, which says, in the elder days of art, builders wrought with greatest care each minute and unseen part, for the gods are everywhere. Oh my God, such beautiful lines. He says कि आपने कभी सुना होगा कि हर व्यक्ति, हर लोग, इवन आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके प्रोफेसर, हर समय कहते हैं हमारे समय में ये होता था। आजकल का जनरेशन तो बहुत ही बेकार है। आजकल के जनरेशन में तो वो बात नहीं है, है ना। सबके लिए नहीं, देयर आर सम एक्सेप्शंस आल्सो। कोई लोग बहुत ज्यादा वर्क हार्ड भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो स्टैंजा है, उसमें यही बात समझाई गई है। क्या कह रही है? इन द एल्डर डेज। एल्डर का मतलब तो बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर एल्डर का मतलब होता है एंशियंट, या प्राचीन काल में। प्राचीन काल में तो आपके पापा ने या आपकी मम्मी ने कई बार ये कहा होगा कि हमारे समय तो क्या इमारतें बनती थी, अभी नया फ्लैट लिया है, बहुत ही बेकार है, इसमें अच्छे से सीमेंट भी नहीं भरा गया है, इसकी दीवारें भी मजबूत नहीं है, इसके दरवाजे भी बहुत ही बेकार हैं, है ना। क्यों कहा जाता है? इसके पीछे कुछ रीजन है। और देखो, उस जमाने में H.W. लॉन्गफेलो को ये बात पता थी शायद, तो उन्होंने देखो क्या लिखा है। He says, in the elder days of art, builders wrought with greatest care. ये
शुरू की 2 लाइन के ऊपर आप गौर फरमाइए, जिसमें ये कहते हैं कि एंशिएंट डेज में जो आर्ट होता था या जो बिल्डर्स होते थे, व्रॉट का मतलब टू बिल्ड, बनाना। क्या बनाते थे? वो जो इमारतें बनाते थे या जो वर्क ऑफ आर्ट बनाते थे, दैट वाज डन विद ग्रेटेस्ट केयर। बहुत केयर, लव और रिस्पेक्ट से वो उस इमारत को बनाई जाती थी। In ancient times, people built their building in proper way with lots of care and perfection. Seen or unseen part were equally important. चाहे वो चीज दिखाई दे रही है, चाहे वो नहीं दिखाई दे रही है, सारे पार्ट जो है वो परफेक्ट बने होते थे। ईच एंड एवरी एक्टिविटी, बिकॉज उनके मन में भगवान का खौफ हुआ करता था, कि उनका डर हुआ करता था, और उनके इस डर के सामने वो जो भी काम करते थे वो अटमोस्ट सिंसेरिटी और ईमानदारी से किया करते थे। एंड दैट इज व्हाई दे यूज्ड टू बिल्ड द वर्क ऑफ आर्ट और द बिल्डिंग वेरी प्रॉपरली, बहुत ही अच्छे से वो बनाया करते थे। सम पार्ट, जैसे अनसीन पार्ट वो कह रहे हैं, तो माइन्यूटेस्ट पार्ट, मतलब माइन्यूट मींस एकदम जो छोटी से छोटी चीज भी है वो भी डिटेलिंग वो किया करते थे, उसको भी बहुत इंपॉर्टेंस दिया करते थे। तो सम पार्ट लाइक द फाउंडेशन, जैसे फॉर एग्जांपल किसी बिल्डिंग का जो फाउंडेशन है वो तो आपको दिखाई नहीं देता, फाउंडेशन तो सबसे नीचे में रहता है, उसके बाद में परत दर परत जो बिल्डिंग है वो ऊपर आ रही है। तो कहने का मतलब है कि अगर फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं होगा, अगर मैं सोच रही हूँ कि कोई मुझे देख नहीं रहा है, वहां पर कोई बिल्डर नहीं है, कोई सुपरवाइजर नहीं है, और मैं इसमें कम सीमेंट का इस्तेमाल करूँ और ज्यादा मिट्टी, रेती, ईटा ये सब डाल दूं, तो और किसी को थोड़ी दिखेगा, किसी को थोड़ी पता चलेगा, और इस तरह से मैं उस बिल्डिंग का निर्माण कर लूँ, तो क्या ये बिल्डिंग ज्यादा दिन चलेगी? आप लोगों को पता है कि आजकल जो ब्रिजेस बनते हैं, आजकल जो इमारतें बनती है, कई बार तो ऐसा भी होता है, आपको समाचार पत्र में, न्यूज़पेपर में यू मस्ट हैव रेड कि बिफोर द इनॉग्रेशन इट कोलैप्सेस, है ना। तो बहुत बार ऐसा होता है कि ये बिल्डिंग्स, ये इमारतें, ये ब्रिजेस उसके इनॉग्रेशन के पहले ही गिर जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें अच्छा मटेरियल नहीं भरा गया है, ईमानदारी से और सिंसियरिटी से ये काम नहीं किया गया है, इसीलिए उसकी इमारत जो है, उसका फाउंडेशन ही जब स्ट्रांग नहीं है, उसकी फाउंडेशन मींस नींव, जब उसकी नींव ही स्ट्रांग नहीं है, तो नेचुरली इट इज गोइंग टू क्रैश डाउन, naturally it is going to collapse. So इसलिए it is very important, strong foundation matters. तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि कौन कौन सी बिल्डिंग्स जो पुराना आर्ट है, पुराना आर्ट मतलब एंशिएंट काल की जो बिल्डिंग है वो आज भी अपनी जगह पर तटस्थ उसी तरह खड़ी है ना। फॉर एग्जाम्पल ताजमहल देख लो, कुतुब मीनार है, चार मीनार है, लंदन ब्रिज है, बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स है ना। चाइना वॉल है, तो कितने सेंचुरीज हो गए, कितने सालों से वो उसी तरह खड़ी है। और आज का जो एक मतलब 2-3 साल पहले बनाया हुआ ब्रिज क्यों गिर जाता है, तो आपको हर व्यक्ति को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। क्यों आज के लोग कहते हैं कि पुराने समय में बहुत ज्यादा सच्चाई थी, पुराने समय के लोग ज्यादा इंडस्ट्रियस थे, बहुत ज्यादा मेहनती थे, बहुत ज्यादा सिंसियर थे। तो ये बात यूं ही नहीं कही जाती, इसके पीछे कुछ उद्देश्य है, उसके पीछे कुछ पर्पस है। क्योंकि गॉड इज ओमनीप्रेजेंट, गॉड जो है वो हर जगह होते हैं, गॉड जो है एवरीवेयर दिखाई भले नहीं पड़ते, लेकिन ही इज ऑलवेज देयर। इसलिए जब भी आप अपना काम करें तो ऐसा करें जो आपको ये लगे कि भले वो दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन वो इमारत का काम जो है वो सच्चाई और ईमानदारी से पूरा हो। दे everyone should work in a coherent manner, everyone should value time and money। और जब तक आप ऐसा ना करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपकी जो इमारत है, आपकी जो लाइफ है, आपका जो कैरेक्टर है, आपकी जो पर्सनालिटी है, वो एक अच्छे नींव के बजाय क्या हो जाएगी, ढह जाएगी, गिर जाएगी। ये जो इमारतें हैं, जो पुराने समय की एंशिएंट इमारतें हैं, क्यों आज भी वो खड़ी हुई है? इतने सारे वेदर है, इतने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, नेचर के कैलामिटीज आती हैं, फिर भी वो तटस्थ अपनी जगह पर खड़ी है, क्योंकि उनकी नींव मजबूत है। उसी तरह से आपको भी अपनी नींव मजबूत करनी है। इन सारी वैल्यूज को, इन सारी क्वालिटीज को, इन सारी गुड क्वालिटीज को आपके अंदर अगर आपने उसका निर्माण किया, आपके अंदर उसको आपने बिल्ड किया, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप किसी चीज से डर नहीं पाएंगे, कोई सी भी मुश्किलों का सामना करने के लिए आप बिल्कुल तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे। This is what has been implied in the stanza 5th. Now we come to stanza 6. So he says, let us do our work as well. Again, the same thing, same चीज imply होती है।
परत दर परत सही वही बात है, थोड़ी सी बात थोड़ी आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर वो कहते हैं let us do our work as well, both the unseen and the seen, make the house where gods may dwell beautiful, entire and clean। कहने का मतलब है कि हमें अपना काम बहुत ही साफ सुथरा ईमानदारी से बहुत ही अच्छा करना है। ऐसा करना है भले वो चाहे दिखे या ना दिखे। एक घर के अंदर अगर आप देखें तो सारी चीज आपको दिखाई नहीं पड़ेगी, कुछ ऑर्नामेंटल भी होती है, कुछ फॉल सीलिंग लगी हुई रहती है। फॉल सीलिंग का भले कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन वो उस बिल्डिंग की सुंदरता को निखारती है, उसकी सुंदरता को बढ़ाती है। तो यहाँ पर ये पोएट हमें कहते हैं कि जो भी काम आप कर रहे हो वो बहुत ही अच्छे से करें, चाहे वो पार्ट सीन हो चाहे अनसीन हो, चाहे उसको कोई देख सके कोई ना देख सके, लेकिन हमें वो हाउस को कैसा बनाना है, ऐसा बनाना है, इतना ब्यूटीफुल बनाना है, इतना एंटायर बनाना है, संपूर्ण बनाना है, इतना क्लीन और नीट बनाना है कि गॉड वहां आकर रहे, है ना। कई बार हम कहते हैं ही इज अ वेरी गुड सोल, व्हाई डू वी से सो? वो दिखने में बहुत सुंदर नहीं है, लेकिन उसकी आत्मा बहुत अच्छी है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही सुंदर क्वालिटीज निहित है, उसके अंदर बहुत ही सी अच्छाइयां हैं जो दूसरों के अंदर वो देखता है, कंपैशन है, सहानुभूति है, बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। तो ऐसे ही घरों में भगवान रहते हैं। भगवान का वास किन लोगों के अंदर होता है? हम कहते हैं ना ही वॉज अ गॉडली मैन। व्हाई डू वी से ही वॉज अ गॉडली मैन? बिकॉज उसके अंदर गॉड की तरह क्वालिटीज भरी हुई, इतनी अच्छाइयां भरी हुई थी, इतनी उसमें अच्छी क्वालिटीज भरी हुई है कि ही इज लाइकेंड टू गॉड। उसको एक गॉड की तरह ट्रीट करने लग जाते हैं, बिकॉज उनके अंदर बहुत ही अच्छी क्वालिटीज है। सो एवरी वन शुड have or possess a good life. Everyone should construct their life and character in a proper way in order to make a good personality, in order to make a good character. हमने अपनी बिल्डिंग जो है वो इतना नीट एंड क्लीन और प्योर और होली बनानी चाहिए, इतनी पवित्र बनानी चाहिए कि भगवान आके उसमें रहे। तो ये सारी जो क्वालिटीज है, गुड क्वालिटीज जो मैंने पहले भी बताई है, सिंसियरिटी है फॉर एग्जांपल, उसको फिर से रिपीट करते हैं सो दैट आपको याद आ जाए कि पुराने ड्राफ्ट्स में मैंने आपको सॉरी स्टैंजर्स में मैंने आपको क्या बताया था कि ऑनेस्टी है, कमिटमेंट है, इंटीग्रिटी है, कंपैशन है। तो ये सारी जो ब्यूटीफुल क्वालिटीज है, अगर ये सारी क्वालिटीज आपके अंदर होंगी, आप बहुत ईमानदारी से काम करेंगे। देखो यहाँ पर एक बंदा जो है वो अपने हिसाब से बिल्कुल तत्परता से अपने काम को कर रहा है, वो कुछ बना रहा है, कुछ बिल्ड कर रहा है, तो बहुत ही ऑनेस्टली ही इज वर्किंग। सो लेट अस डू, एवरीवन शुड डू आवर वर्क वेल। हमें किसी और की राह नहीं देखनी है कि वो करेगा तो ही हम करेंगे। जो काम हमारे सामने आया उसको हम करते ही चले जाएं। वी शुड वर्क वेरी हार्ड टू कंस्ट्रक्ट नॉट ओनली आवर ओन लाइफ बट द एंटायर लाइफ ऑफ ह्यूमैनिटी। सो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये जो टेम्पल रूपी अपना जो घर है, अपना जो पर्सनालिटी है, अपना जो हाउस है, इसे हम किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। आपने देखा ही है कि अब वो जो इमारत है वो खड़ी होती जा रही है, ब्यूटीफुल सुंदर होती जा रही है, बनते जा रही है। तो भाई आपको भी अपनी इमारत को अच्छी ही बनानी है, तो आप भी उसमें एक न एक चीज ऐसी क्वालिटीज को निहित करते जाइए, यूज करते जाइए, ताकि एक अच्छी इमारत उस इमारत की तरह आपकी इमारत भी, आपकी बॉडी भी जो एक टेम्पल की तरह बन गई है, जो एक मंदिर की तरह बन गई है, क्योंकि आपने बहुत ही अच्छी क्वालिटीज को उसमें डाला है और वो बहुत होली या पवित्र हो चुकी है। Seventh stanza we see, else our lives are incomplete, standing in these walls of time, broken stairways where the feet stumble as they seek to climb. बहुत सुंदर लाइन्स है। He says, शायद आप लोगों को भी अच्छी लगे, मैं ही कहे जा रही हूँ कि बहुत सुंदर लाइन्स है। आई होप यू ऑल आर लाइकिंग कि ये लाइन्स सच में देखो कि कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी सुंदर है, बहुत कुछ ये बयां कर रही है, बहुत कुछ ये आपको बता रही है। He says, the poet says, else our lives are incomplete. अगर हम इन अच्छी क्वालिटीज को अपने अंदर नहीं रखेंगे तो हमारी लाइफ कैसी होगी? हमारी लाइफ इनकम्प्लीट होगी। स्टैंडिंग इन दीज वॉल्स ऑफ टाइम, तो ये दीवारें जो बनी हुई है, टाइम के कॉन्स्ट्रेंट पे ये दीवारें बन रही है, इन क्वालिटीज को आप यूज करके इन इमारत को आप खड़ा कर रहे हैं। अगर अगर
broken stairways where the feet stumble as they seek to climb. अगर आपने अपनी इमारत को इस स्टेयरवेज की तरह, देखो ये स्टेयरवेज कैसी दिख रही है, बहुत ही गंदी है, अनटाइडी है, जहां वहां से टूटी हुई है, बहुत सारे पत्थर और चीजें पड़ी हुई है. व्हाट हैपेंस अगर आप इसको, इसके ऊपर चढ़ेंगे, आप इसके ऊपर से चलते जाएंगे, इसको क्लाइम करेंगे, तो क्या होगा, आप गिर सकते हैं, आप फिसल कर सकते हैं, यू कैन स्टम्बल इट ना. तो आपने क्या बनाई है, यही आपने अपनी लाइफ बनाई है. अगर आपकी लाइफ इनकम्प्लीट है, अगर आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट क्वालिटीज नहीं है, वर्च्यूज नहीं है, गुड क्वालिटीज नहीं है, तो आपकी लाइफ इसी स्टेयरवेज की तरह रहेगी. और इस स्टेयरवेज को क्लाइम करने में आपको जिस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, आप, आई टेल यू, यू वोंट बी एबल टू रीच योर डेस्टिनेशन. आप उस डेस्टिनेशन में तक पहुंचने में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होंगी. आप पहुंचोगे तो जरूर, आप, you will be able to reach that destination, but with lots of difficulties. Why? Because अपनी लाइफ में बहुत सारी जो बिल्ड करने थे, जो कैरेक्टर आपको बिल्ड करनी थी, जो पर्सनालिटी आपको बनानी थी, वो आपने नहीं बनाई है. और इस तरह से आप गिर गिर कर चलेंगे. आप एक लीप में ऊपर तक अपनी मंजिल को या अपनी डेस्टिनेशन को हासिल नहीं कर पाएंगे. आपको धीरे धीरे चलते हुए, गिरते हुए, पड़ते हुए, चलते हुए आपको ऊपर अपनी मंजिल की ओर जाना पड़ेगा. सो ही सेज कि इस स्टैंजा में वो बता रहे हैं, आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए. अगर ब्रोकन स्टेयरवेज है तो वो आपको कहीं नहीं ले जाएगी, आपकी मंजिल आपसे बहुत दूर हो जाएगी. बिकॉज यू हैव केप्ट थिंग्स इनकम्प्लीट, यू हैव मेड योर लाइफ इम्परफेक्ट. आपके अंदर इतने सारे इम्परफेक्शंस हैं, गैप्स हैं, लेक्यूनास है, शॉर्टकमिंग्स हैं, जिसके कारण आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप सक्सेस को एम्ब्रेस नहीं कर पाओगे. यू विल बी अ टोटल फेलियर. सो इस तरह की लाइफ किसी को भी नहीं चाहिए. नो वन शुड हैव सच लाइफ. आपको अपनी लाइफ या अपने डेस्टिनेशन की ओर जाना है, तो आपको अपनी लाइफ में बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज को डालते हुए बिल्ड करना है, एक अच्छी इमारत का निर्माण करना है, तभी आप अपनी डेस्टिनेशन की ओर आसानी से जा पाएंगे. सो बहुत जल्दी ही अपनी पोएम जो है कंप्लीट होने वाली है. ओनली वन मोर स्टैंजा इज लेफ्ट. So this is the 8th stanza, which says, build today, then strong and sure, with a firm and ample base, and ascending and secure, shall tomorrow find its place. So he says, see, देखो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, सभी लोग काम कर रहे हैं, बड़ी तल्लीनता से, ईमानदारी से सब अपने काम में लगे हुए हैं. तो he says, build today, आज का दिन जो है वो बिल्ड करने का है. अगर आज आप बिल्ड करते हो तो कैसा करना है, स्ट्रॉन्ग एंड श्योर विद अ फर्म एंड एम्पल बेस. आपकी जो बिल्डिंग है वो कैसी बननी चाहिए, स्ट्रॉन्ग बननी चाहिए. उसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसकी दीवारें स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, श्योर होनी चाहिए, सक्षम होनी चाहिए, और इतनी तटस्थ, फर्म मीन्स तटस्थ, उसको किसी तरह का कोई, कितनी आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, उसको कुछ भी नहीं हो पाएगा. एम्पल बेस मीन्स, एम्पल मीन्स बहुत ज्यादा, वास्ट, बड़ा. तो बहुत बड़ा, अगर एक नैरो जगह पे अगर आपको खड़ा करते हैं तो आपको गिरने का डर हो सकता है. लेकिन अगर एक ब्रॉड, एम्पल मीन्स ब्रॉड, बहुत बड़ी जगह पे आपको एक बेस, आपका जो बेस है, जो आपका फाउंडेशन है, अगर वो बहुत ऊंचा, बड़ा है, बहुत एम्पल प्लेस है उसमें, तो आपकी बिल्डिंग रूपी जो दीवार है, या बिल्डिंग रूपी जो बिल्डिंग है, जो आपकी पर्सनालिटी है, वो बहुत ही आराम से खड़ी हो पाएगी. और आप असेंड करेंगे. असेंड मीन्स आप ऊपर चढ़ेंगे, राइज करेंगे, चलते जाएंगे टू अ सिक्योर प्लेस, है ना. ऐसी मंजिल जो हर तरह से सुरक्षित है, ऐसा टुमारो, ऐसा फ्यूचर आपको मिलेगा जो हर तरह से सिक्योर है, सुरक्षित है. इस तरह से आप अपने फ्यूचर की ओर, है ना, अगर आप देखें तो पोएट जो है आपको शुरुआत से एक एक क्वालिटीज डालते डालते धीरे धीरे वो फ्यूचर की ओर आपको लेकर जा रहे हैं, वो आपको आपकी मंजिल की ओर लेकर जा रहे हैं. बहुत सारी चीजों को डाल डालकर, अच्छी क्वालिटीज का यूज करके, इस्तेमाल करके वो आपको ऊपर ले जा रहे हैं. एवरीवन वंस बीइंग विल बी इम्प्रूव्ड एज दे वर्क ऑन देयर कंट्रीब्यूशंस ऑफ टाइम. तो टाइम को ध्यान में रखते हुए अगर आपने इन सारे क्वालिटीज को अपने अंदर डालते गए, देखो ये आपका फ्यूचर रहेगा. सी, दिस इज द असेंडिंग फ्यूचर. आपने अभी देखी थी एक स्टेयरवेज जो कैसी थी,
इट वॉज अ ब्रोकन स्टेयरवे। उस स्टेयरवेज में चलने से क्या होगा, आप नीचे गिर जाएंगे, आप फिसल सकते थे। दैट मीन्स, कहने का मतलब है कि वो स्टेयरवेज और इस स्टेयरवेज को आप कंपेयर करिए। अगर आप इस स्टेयरवेज को कंपेयर करते तो आप देखेंगे, देखो साइड में दिए लगे हुए, साफ सुथरी स्टेयर है, एम्पल लाइट है, और बिल्कुल आप बड़ी आसानी से एक स्टेप दूसरे स्टेप करते हुए, क्लाइंब करते हुए आप अपनी डेस्टिनेशन की ओर आसानी से पहुंच सकते हैं। जबकि अगर आप उस स्टेयर्स को देखेंगे तो उसमें इतने इम्परफेक्शंस थे, इतने लेकुनास थे, आपने अपनी लाइफ में इतने गैप्स बना के रखे हैं, वो इतनी टूटी स्टेयरवेज थी कि आप ऊपर तक अपनी मंजिल की ओर आसानी से नहीं जाएंगे। तो मैंने ये दो पिक्चर्स आपको इसलिए दिखाए हैं ताकि सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ब्रोकन स्टेयरवे एज वेल एज अ स्टेयरवे व्हिच टेक्स यू टुवर्ड्स द फ्यूचर। आपको फ्यूचर की ओर ले जाने वाला ऐसा स्टेयरवेज है जो बड़ी आसानी से, बिना किसी मुसीबत के, बिना किसी कठिनाई के आप बड़े आराम से अपनी मंजिल की ओर चले जाएंगे। So now the last stanza, stanza 9, where it says, "Thus alone we can attain to those turrets where the eye sees the world as one vast plain and one boundless reach of sky." So यहाँ पर ये कह रहे हैं कि thus alone we can attain. हाँ, हमको सब लोगों की जरूरत नहीं है। अगर अपनी बिल्डिंग, हमको अपनी इमारत खुद ही बनानी है, अपनी कैरेक्टर, अपना पर्सनालिटी, अपनी लाइफ खुद ही बनानी है, बाकी लोग हमें सपोर्ट करने के लिए है, लेकिन हमारा काम तो हमें ही करना है, हमारी पढ़ाई तो हमें ही करनी है। दूसरा कोई आकर के आप तो एग्जाम देने वाला नहीं है। सो आपके काम आपको ही करने हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट लाइन, दस अलोन वी कैन अटेन। अटेन मीन्स हासिल करना। इस मंजिल को हासिल करना आपके ऊपर ही है। टू दोस टरेट्स, टरेट्स का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग है जो अपन ने साइड में रखे थे, जो ऊंची होती चली गई, तो अभी उसके टॉप में, जो टॉप पोजीशन में आप पहुंच गए हैं, और टॉप पोजीशन को कहते हैं टरेट्स। जहां पर अगर आप जाकर खड़े हो जाएं तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा, यू विल सी द वर्ल्ड, है ना। तो अलोन यू हैव टू डू, आपने बहुत ज्यादा मेहनत किया, काम किया, और अब आप उस जगह पर पहुंच गए। सी दिस इज द प्लेस वेयर यू हैव रीच। वो जो बिल्डिंग थी, निर्माण करते 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 बढ़ती हुई, अब वो इतनी बड़ी हो गई है। अगर आप इस बिल्डिंग के ऊपर टेरेट्स पर पहुंच गए हैं, इसका मतलब आप सक्सेस की ओर पहुंच गए हैं, इसका मतलब आप अपने डेस्टिनेशन की ओर पहुंच गए हैं। और इस जगह पर खड़े होकर आपको क्या दिख रहा है, यू कैन सी अ क्लियर व्यू, एक क्लियर व्यू आपको दिखाई, पूरे वर्ल्ड को आप वहां पर खड़े होकर देख सकते हैं। क्योंकि कहाँ पर खड़े हैं आप सबसे ऊंची पोजीशन पर हैं। क्यों खड़े हैं आप वहां पर? क्योंकि आपने एक अच्छी बिल्डिंग का निर्माण किया है, एक ऊंची बिल्डिंग का निर्माण किया है, आप सक्सेसफुल हो गए हैं अपनी लाइफ में। ऐसा धीरे धीरे चलते हुए, इन स्टेयरवेज को करते हुए, भगवान की नजरों के सामने रहते हुए आप आज उस ऊंचाई को के ऊपर पहुंच गए हैं, उस ऊंचाई को आपने हासिल कर लिया है, उस डेस्टिनेशन को आपने अपना लिया है, अपना अधिकार कर लिया है। क्यों? क्योंकि आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है, आपने अपनी लाइफ को इस तरह से क्रिएट किया है, इवॉल्व किया है, बनाया है, रिस्ट्रक्चर किया है, तभी आज आप उस जगह पर पहुंच आए। ये पोजीशन, सो दिस इज द टॉप मोस्ट पोजीशन ऑफ योर लाइफ। इस पोजीशन में पहुंचने के लिए आपको बहुत सारे प्रयत्न करने पड़े हैं, बहुत सारे काम करने पड़े हैं, बहुत सारी क्वालिटीज करनी पड़ी है, हार्ड वर्क करनी पड़ी है, आपको बहुत सारी कमिटमेंट अपनी लाइफ में लेने पड़े हों, तभी शायद आप इस तरह इस लाइफ में, इस मंजिल पर आप पहुंच पाए। सो दिस इज द प्लेस वेर यू वांटेड बी, दिस इज द मीनिंग ऑफ एग्जिस्टेंस। आपकी लाइफ का, आपके अस्तित्व का यही एक उद्देश्य है, ताकि आप अपनी ये मैनकाइंड या मानवता के इतिहास को आप सुदृढ़ कर सकें, उसको एक नया आयाम दे सके, आप अपनी लाइफ को, अपनी मंजिल को पा सके, आप अपने डेस्टिनेशन को पा सके। धीरे धीरे करते हुए आप आज उस इमारत में ऊपर चढ़े गए हैं। आपने इस लैडर्स को, इस सीढ़ियों को पार करते हुए आपकी जो मंजिल है उसको आज आपने हासिल कर लिया है। क्यों हासिल कर पाए हो? बिकॉज यू हैव वर्कड वेरी हार्ड फॉर इट। आपने अपनी लाइफ को खुद अपने हाथ से क्रिएट करना किया है। तो स्टूडेंट्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू दैट यू क्रिएट योर ओन लाइफ। मैं ये नहीं कह रही कि एक ही दिन में आप सारी जो पॉसिबिलिटीज है, या सारी जो गुड क्वालिटीज है, ये सारे वर्च्यूज हैं, उनके अपने अंदर आप ले आओ। फॉर एग्जाम्पल एक लाइन में हमने देखा था
कि you have to make your life neat and clean. अगर आप अपनी लाइफ को नीट एंड क्लीन रखते हैं तभी गॉड उस जगह पर या उस ऐसे घर में आकर रहते हैं. कहने का मतलब है कि आपका रूम अगर देखा जाए तो कितना गंदा रहता है, कितनी गंदगी आप करके रखते हैं उसे, तो एटलीस्ट ट्राई टू डू, एक एक चीज आप करते जाइए ना. आप अपनी उस रूम को ठीक करना स्टार्ट कर दीजिए. आपके पेरेंट्स आपको कितना बोलते हैं लेकिन वहीं पर सब सारी चीजें, आपका लैपटॉप भी वहीं पड़े रहेगा, आपके बेड का बिखरा हुआ रहेगा. तो ट्राई टू ऑर्गेनाइज योर लाइफ, है ना. ये सारी चीजें तो हर समय हर लोग, आपके टीचर्स भी कहते हैं, आपके पेरेंट्स भी कहते हैं, कोई फ्रेंड्स जो है वो भी कहते हैं, आपके पीयर ग्रुप कहते हैं, आपके बड़े भाई बहन कहते हैं, आपके रिलेटिव्स भी कहते हैं, लेकिन आप इन छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं. मैं नहीं ये कहूँ आपको कि बहुत बड़े बड़े मैसिव वर्क करो, छोटी छोटी सी चीजों को आप अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करके आप अपनी लाइफ को, अपने जीवन को सुनियोजित ढंग से या एक डिसिप्लिन्ड वे में आप उसको ऊपर उभार सकते हैं. इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल. हर के अंदर वो पोटेंशियल है, हर एक इंसान बहुत अच्छा है. तो ये ट्रांसेंड करो अपने आप को, अपने इंटेलेक्चुअल लेवल को इतना ऊंचा बढ़ाओ कि आप उस सक्सेसफुल, हम सक्सेसफुल लोगों को देखकर बहुत सोचते हैं कि हम भी वहीं खड़े रहें, हम भी वहीं पहुंच जाएं, लेकिन नेवर टेक दिस शॉर्टकट. शॉर्टकट लोगे तो आप जिंदगी में कहीं पहुंच नहीं पाओगे. आप उस कॉन्ट्रैक्टर की तरह होगे जिसका इनॉग्रेशन के पहले ही उसका पुल जो है वो ढह जा रहा है. तो क्या यही चीज हमें करनी है लाइफ में? नो, you have to maintain all these good qualities in you. You have to incorporate all these good qualities in your life so that you attain that success in your life. So I hope you all must have understood this poem. So thank you so much for patient hearing. Over to Manjushri. Thank you, Usha. Actually, everybody liked it. Wonderful explanation. And will you be able to stop sharing? Yeah. Okay. If it is possible. Yeah, of course. Right. Yes. So if whenever you were anyone has- asking, whenever you were asking questions, all the children were writing their answers, and that shows that they were really involved in whatever you were teaching. And Okay. fantastic explanation, Dr. Usha. And actually, the underlying meaning and everything was coming out from your heart too. So you were also really involved in the teaching. And yeah, really I enjoyed it. Really, so I enjoyed it. yes. And this was a very different experience for me because when you are in class, you know, now Yes. for so many years you have been teaching the same sort of students, isn't it? Yes, yes. So now I got variety. Yes, and you know, yes, and all the children really liked the way you taught, and you really came down to the level of the students. You explained each and every word, and you know, there are so many different meanings in each and every stanza, and you have really Right. brought out the underlying Yeah. meaning, and it was really very interesting. You made it so interesting with the pictures and all those. You have really taken a lot of efforts, and Of course. yes, and yes, so all the students from different colleges are really being benefited by people like you who are really taking so much of interest, and all of them are fortunate. You know, even if some children are not joining online, they view it afterwards, because we see Okay. that so many people are viewing the poems, and the what you say, the PPTs are also going to be there with them forever. So you Right. know, they can revise the poem, go back, listen to your explanation again and again. So you know, that is Right. really going to help them. And yes, so thank you for that wonderful explanation. And students, tomorrow again we will be back here with another interesting session. And till then, again, we are going to be here at 5 p.m. Join sharp on time so that you don't miss anything. So thank you for your patient listening and responding to the questions, writing answers along with the explanation. And whenever madam was asking you questions, so you responded, yes, immediately. So that shows that you are interested. Wonderful. Thank you, Dr. Usha. Thank you. Thank you so much. Yes.